मेरा मेरा Good morning, sir. My ID of China. ऑफिस Morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. So right now we are today discuss about this needs to resolve conflict. So before this, if you have any problem, you can ask. मस्त है सर हम देखो बाबू देख सकते अच्छी बच्चे हैं बहुत अच्छे अच्छा ऐड नहीं होंगे Please. Now I am going to mute to everyone because you will make disturbance for everyone. डोंट म्यूट Listen, yesterday we have discussed about that point participation, in which we have talked about the other ways of the participating. So if we are not very you have any doubt regarding these points, now today we'll start from the need to resolve conflict. Need to resolve conflict. So when we talk about this need to resolve conflict, in this point we are going to tell about यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं the conflicts. Regarding when we talk about the conflict, the meaning of the conflict, Yeah. so when we talk about the conflict meaning is related with the quarrel. Quarrel. The Hindi meaning is related with झगड़ा या हल्का सा मनमुटाव हो सकता है. So as we seen that India is a too much diverse country, so on this pattern we have a large background of economic background, social background and many more background. So on the basis of different cultures, different culture, then on the basis of different religions, you all understood about the culture, religions, then regions, economic background, then we have to add this word etc. Any more things also added in this. So different culture means different riti rivaj, then religions, different religions. We know in the last second lesson we have read about the 8 major religions which worshipped in India, and for all over the world you'll found that the every religion which is found all over the world is found in India. Then regions, अलग-अलग regions को भी लेकर आपस में झगड़ा कर देते हैं लोग. For example, the North Indian people thinking that the South Indian people are inferior to us, and the same thing, the same notion that the South Indian people have the same notion with the North Indian people,
एंड द नॉर्थ ईस्ट पीपल, नॉर्थ ईस्ट जो बिल्कुल जो सेवन सिस्टर हिल है, ठीक है, तो उधर के इलाकों में किस तरह से हमारे प्रति सोचते हैं. एज वेल एज यू हैव सीन दैट वी बिलोंग फ्रॉम द ईस्टर्न यूपी. So Eastern UP and the Bihar people. So if you visit to any metropolitan city regarding Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, so you'll found. So in which manner the people of that specific region will think about us, Northern Eastern UP people and the Bihar people. They have seen the people with the eyes of contempt. किस तरीके से देखते हैं. Then background, economic background. इकोनॉमिक बैकग्राउंड आई कि कोई गरीब है कोई अमीर है, तो अमीर किस तरह से गरीब को देखता है और गरीब किस तरह से अमीर को देखता है. ठीक है. दिस एंड रिगार्डिंग ऑन दिस देयर आर मेनी थिंग्स रिगार्डिंग ETC इन पॉलिटिकल बैकग्राउंड, मेनी मोर बैकग्राउंड्स. क्लियर. तो ये चीज, तो ये चीज को लेकर ये सारी चीजें लोगों के मन में, these all the things make the people and make the people mind filled with the discrimination. In the first lesson, diversity. The second lesson, diversity and discrimination. Third lesson, what is government? And when we talk about the key elements of democratic government. In this, all these lessons, that discrimination is a common word and it is used in every lesson. Because India is too much diverse country. Regarding the diversity, if we talk about the diversity, discrimination is present. And if discrimination is present, automatically the diversity is also present. Clear? But discrimination is a bifurcation and diversity is an attribute of any country. Think about. If you've seen a bouquet, the bouquet is flowers, different flowers is related to bouquet. And if just in a bouquet, one kind of flower, is it look good, or that bouquet which consists of different flowers looks good? So it's all about the matter of thinking, in which manner you are thinking. Clear? So the discrimination also leads to fear. The discrimination leads to fear, and the fear leads to violence. Fear leads to violence. So, in this manner, these are the things in which our country has a different culture, religion, regions, economic background. This all create a kind of a situation which is related with fear and violence. So in this manner, first of all, there's too much this create too much conflicts. So when we fear violence, this related with conflict, and the conflict should be resolved, and the conflict should be resolved by the government. And which government will resolve this? If this government is based on the democratic patterns. So if the government based on the democratic government, when the government based on democratic pattern, then this government, what? This government resolves the conflicts. Clear? Now, I'm going to unmute. If you have any doubt, you can ask. But don't make shout. But one by one. Yes. सर फियर का मीनिंग क्या होता है? फियर का मतलब भय होता है. फियर का मतलब भय. भय का मतलब डर. वायलेंस वायलेंस का मतलब झगड़ा या दंगा जो भी हो सकता है. तो डिफरेंट कल्चर अलग बता रहे हैं. फियर का मतलब दंगा. दंगा माने कि झगड़ा. डिफरेंट कल्चर देखिए. फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहले एक मिनट एक करके कोई पूछेंगे. ये शिवानी सिंह, पहले आप पूछिए क्या पूछना चाहती हैं.
सर डिस्क्रिमिनेशन से हम लोग फियर और वायलेंस कैसे कर सकते हैं? जैसे अगर मैं डिस्क्रिमिनेशन बताता रहेगा हूँ, तो हम देखिए ध्यान, उससे डरे कैसे? मैंने कहा कि एक एक करके पूछेंगे, सबका मैं आंसर बताऊंगा। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव। जब ये भेदभाव होता है तो आप देखते हैं गांव में कि हाई कास्ट के लोग जो है छोटी कास्ट के लोगों को पीटने लगते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो होता है भेदभाव से होता है, और भेदभाव फियर को बॉर्न करता है। डिस्क्रिमिनेशन फियर को बॉर्न करता है, और जब ये फियर अपने उस पे अपने हाइट पे चढ़ जाता है बहुत ज्यादा, तो कोई कितने दिन तक उसको टॉलरेट करेगा, बर्दाश्त करेगा? तो वो आगे कभी ना कभी वायलेंस के रूप में, लाइक अ वॉल्केनो बर्स्ट होता है, एक तरफ बैठता रहता है, बैठता इकट्ठा होता है, फिर बाद में बर्स्ट कर जाता है। इस तरह से फियर वायलेंस में क्या होता है? चेंज हो जाता है। ठीक है शिवांगी सिंह, सुना आपने? यस सर। कि डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से फियर में तब्दील होता है, और ये फियर वायलेंस में कन्वर्ट हो जाता है। समझा आपको? और यही कन्वर्ट जो होता है वायलेंस में, दिस द वायलेंस एंड द कॉन्फ्लिक्ट इज द सेम थिंग, एंड देन आफ्टर द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस एंड ट्राई टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। यस, सर उसको झगड़ा करते हैं। डिफरेंट कल्चर वाला एक अगर आप उसको मिनट, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिसको पूछना है पहली बात तो दूसरे का सुने। हो सकता है कि दूसरे के क्वेश्चन से आपको फायदा हो, और उसके बाद डिफरेंट कल्चर वाला। लिसन, आप अपने क्वेश्चन को अपने माइंड में रखेंगे, फिर उसके बाद पूछेंगे। शिवानी सिंह, क्लियर हो गया आपका? यस सर। आप डिफरेंट कल्चर वाला। सर मुझे एक चीज सर पूछना था। बात पूछिए। सर लेकिन अब तो अगर हायर क्लास अगर लोअर कास्ट को अगर कुछ भी पीट देता है तो सर अब तो हायर क्लास के लोगों को जेल हो जाती है, तो सर यहाँ पर तो डिस्क्रिमिनेशन फायदा नहीं होता है ना? देखिए उसमें कई चीजें हैं। देखिए वो तो है ही कि आज के डेट में जो लॉस बन रहे हैं वो लॉस ठीक नहीं है, कि कहीं कहीं होता है, तो उसमें भी क्या होता है कि लोग झूठ मूठ का भी लिखवाते हैं। तो उसमें आप देखते हैं, देखिए उसमें क्या है कि आपने जो लेसन पढ़े, उस लेसन के अंदर आपने देखा, प्लीज, आपने देखा कि 1947 में हम लोग क्या हुए? फ्रीड हुए। ये हमको फ्रीडम मिला। 1947 में, हाँ। कौन है ये? कौन है ये? कि आपने देखा कि 1947 में फ्रीडम हुआ। तो ये फ्रीडम होने से पहले इन कास्ट के साथ बहुत ज्यादा क्या कहते थे? बहुत ज्यादा वायलेंस होता था। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कौन है ये? मैं पता करा लूंगा, और पता करके उसको मैं रिमूव कर दूंगा कम से कम 1 हफ्ते के लिए। तो आप देखिए कि 1947 में फ्रीडम होने से पहले उन लोगों के साथ कैसे ट्रीटमेंट होता था। फिर जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन 1947 के बाद से 1950 में हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उन कॉन्स्टिट्यूशन में सबके साथ कहा गया कि आगे फ्यूचर में जिस तरह से साउथ अफ्रीका में 1994 न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो सबके फेयर में सोचा गया। तो यहाँ पर 1950 के अराउंड में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कहा गया कि नहीं, कि हमें जो कास्ट, जिन कास्ट के साथ अब तक बैडली ट्रीट हुआ, उनको अपलिफ्ट करना है। ठीक है? तो अपलिफ्ट करने के लिए कुछ लॉज बने कि उनके साथ ये नहीं करना, और उनको अपलिफ्ट किया गया। ठीक है? और उनको आपको नहीं लगता कि उन लॉस का दुरुपयोग होता है? लॉस का होता है, देखिए एकदम होता है। देखिए लॉस का दुरुपयोग होता है, कभी कभार नहीं भी होता है। तो उस कास्ट के लोग ऐसा लिखवाते हैं FIR, या जाके पिटीशन डालते हैं, तो होता है। ठीक है सर, वो लोग झूठ भी तो बोल सकते हैं। हाँ, झूठ बोलते हैं, ऐसी बात नहीं कि झूठ भी बोल सकते हैं, और बोलते भी हैं, चाहे होता भी है, बट स्टिल everything is written on the paper, and on the paper we are going to tell about. For example, we are talking in some manner that the discrimination is removed from our country, but have you seen this?
आप देखते हैं कि लिखा होता है कि हमारी कंट्री से भेदभाव समाप्त हो गया है, सबको इक्वेलिटी दिखाई देती है, लेकिन सिर्फ इक्वेलिटी तो सिर्फ ऑन द पेपर टर्म्स है ना, रियलिटी में तो अभी भी इक्वेलिटी नहीं मिली है। मैंने कहा है कि प्लीज आपके आसपास जो लोग हैं जरा बोलिए कि जरा वो शांत रहें, बाकी बच्चों को परेशानी होती है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन, इक्वेलिटी। संजय शिवांगी सिंह यस सर। कि वो जो है कागज पे है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन होता है। मैनिपुलेशन माने कि दखल अंदाजी होती ये है। सर अभी भी कहीं ना कहीं हाँ होता है। और सुनिए, और साथ ही साथ जो एडवांटेजेस मिलने चाहिए उस कास्ट को, उसके कुछ स्पेसिफिक तबके ही उसका फायदा उठाते हैं, क्योंकि आप भी देखते हैं कि अभी बहुत वो लोग गरीब हैं, और जो अमीर हो गया है तो उसको जो रिलैक्सेशन मिला है उसको उस रिलैक्सेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बेनिफिट को उठाता है। कैसे? अब आपके गांव में कहीं ना कहीं गले की दुकान होगी जहाँ सरकारी अनाज मिलता है, ठीक है। अब वो अनाज लेने के लिए 2 रुपए 3 किलो का अनाज, या हो सकता है फ्री का भी अनाज लेने के लिए आते हैं, और बाइक पर आते हैं, कार से आते हैं। तो क्या वो रियलिटी में राशन मिलता है। लेसन, तो क्या उस टर्म को डिजर्व करता है? उसको उसकी जरूरत है? नहीं, ठीक है। तो ये बताना चाहते हैं, अमीर को उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जो गरीब अमीर है, को उसकी उसको जरूरत नहीं है, लेकिन देखिए अमीर को उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसको रिलैक्सेशन मिलता है, अब थोड़े छोटे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में रिलैक्सेशन का मतलब कि मान लीजिए कि कोई जनरल कास्ट का है, तो जनरल कास्ट के लिए आप बड़े होंगे तो फॉर्म डालेंगे जॉब के लिए, तो वो फॉर्म 100 रुपए का है। और बाकी जनरल कास्ट यानी जनरल कास्ट माने कि जिसको रिजर्वेशन नहीं है, जिसको रिजर्वेशन नहीं है वो जनरल कास्ट में है, और जिसको रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, और वो रिजर्वेशन क्या है कि कोई एससी है, कोई एसटी है, कोई ओबीसी है, तो उसके बेसिस पर उसको रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। कि अगर वो उतना भी मार्क्स नहीं पाता है, कम भी मार्क्स पाता है, तो उसको गवर्नमेंट जॉब। अरे अपने आसपास बोलिए कि जरा लोग चुप रहे। सर लेकिन अगर अमीर को अनाज की जरूरत, मैं क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा है कि, हाँ बोलिए। एक बच्ची कुछ पूछ रही थी, मैंने म्यूट कर दिया। यस सर। सर आप अभी बोले कि जो अनाज गरीबों को जो सरकार देती है गरीबों के लिए, अभी वाले अमीर लेते हैं। अभी वाले टर्म को छोड़ दीजिए कि अभी सरकार अनाज क्यों बंटवा रही है, ठीक है। तो ये तो लॉकडाउन की वजह से सबको बंटवा रही है, अदरवाइज जो इससे पहले जो मिलता था, स्पेशल जो कार्ड बनता था कि इस कास्ट के लोगों को 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल मिलेगा, ठीक है। उस कंडीशन में ये कह रहा हूं कि कोई बहुत अमीर है, ठीक है, और उसके बावजूद भी वो उसका बेनिफिट उठाता है, तो उसको उसकी जरूरत है। मैंने बहुत जगह देखा है कि उसको 2 रुपए 3 किलो चावल मिलता है, और लेने के लिए वो किससे आ रहा है? बुलेट से आ रहा है वो 2 रुपए किलो का चावल लेने के लिए, और कितने रुपए का ऑयल फूक के आ रहा है। तो उसको कहीं ना कहीं लोग मिसयूज भी कर रहे हैं, क्योंकि जो एक बार इकोनॉमिक, क्योंकि देखिए जो एक बार इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, भले ही वो शेड्यूल कास्ट से है, लेकिन उसका अगर इकोनॉमिक बैकग्राउंड सही हो गया और आर्थिक रूप से समृद्ध हो गया, फिर उसको उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसका बेनिफिट उठाते हैं, जबकि उसको सर ये सब तो है कि ये सब लॉज लगाए गए कि इक्वालिटी मिल जाए उन लोगों को। सर बट हमको ये नहीं समझ में आता है कि जब जैसे ऐसा सर बोले जाते हैं कि अगर जो लोअर कास्ट है, अगर उनको सर अगर कम मार्क्स से भी उनको कोई जॉब मिल जाती है, बट सर जो हायर कास्ट है उनको बहुत ज्यादा मार्क्स लाना पड़ता है किसी जॉब को पाने के लिए। सर तो इससे उन लोगों को इक्वालिटी कहाँ से मिलती है? यही तो सुने देखिए, अब इसको मैं ऐसे बताता हूँ, ये इसलिए अब मैं ये नहीं कह सकता क्यों किया गया, मैं ये बता सकता हूँ कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्यों किया गया। लिसन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए किया गया। मुझे भी यही पूछना है कि ये लॉ क्यों बनाया गया? सुने, जब हम बात करते हैं इक्वेलिटी की, ठीक है, और इक्वेलिटी की बात करते हैं 1947 के बाद से गवर्नमेंट ने समझा कॉन्स्टिट्यूशन में उस लॉस को लगाया गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लॉस बनाए गए, नियम बनाए गए। तो अब कहेंगे सर रियल सही बात है कि सर इक्वेलिटी फिर कहाँ हो गई?
तो गवर्नमेंट ने जो लॉज बनाए, लेकिन सुनिए, जो गवर्नमेंट ने लॉज बनाए या जो भी बनाए प्रोविजंस, तो उसमें वो प्रोविजन इसलिए बनाया गया कि जो कास्ट अब से पहले फ्रीडम से पहले उनके साथ जो इल ट्रीटमेंट हुआ है, तो उस इल ट्रीटमेंट से और जो जिसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत पीछे है, तो उसको अपना बैकग्राउंड सुधारने के लिए क्या किया गया, रिजर्वेशन दिया गया कि वो अपने आप को क्या करे, अपलिफ्ट कर सके, इकोनॉमिक बैकग्राउंड को सुधार सके। ठीक है। और सुनिए, साथ ही साथ शुरुआत में जो रिजर्वेशन दिया गया ये 10 इयर्स के लिए ही दिया गया था। ठीक है। लेकिन मतलब कि 1960 तक इसे रिमूव हो जाना चाहिए था, 1961-62, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने वोट बैंक के लिए इसको रिमूव नहीं किया और ये आज भी वैसा ही एग्जिस्ट करता है। और एक दो बार अगर इसको रिमूव करने की कोशिश की गई बीच में कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बहुत सा एजिटेशन होने लगा, कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, वायलेंस होने लगा। ठीक है। फिर गवर्नमेंट को पर फिर आपको भी लगता है कि अब इसको हट जाना चाहिए, क्योंकि सर अब तो इक्वालिटी उन लोग को मिल चुकी है। मुझे लगता है, अब वो मुझे क्या लगता है, इसके पीछे बहुत से लॉस बने होंगे। ठीक है। और टाइम टू टाइम इस पे पिटीशन भी डल रही है, लेकिन अब कुल मिलाकर उसका अभी तो फिलहाल में चल ही रहा है मैटर। ठीक है। तो देखिए, हमारे लगने से नहीं है, लगने के अलावा भी सबका देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या क्या है, सबका अलग अलग हिसाब है, कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है, रीजन अलग है, तो ये हट तो जाने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट क्या सोच कर नहीं हटा रही है, अब तो ये उसके ऊपर है। ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट भी डरती है कि कहीं ना कहीं वायलेंस ना हो, और वायलेंस हो जाएगा तो बहुत ज्यादा लोग किल होंगे। इस वजह से भी गवर्नमेंट जो है इसको रिमूव करेगी, लेकिन एक साथ रिमूव नहीं कर पाएगी। ठीक है। धीरे धीरे करके होगा। जिस तरह से धीरे धीरे कर आर्टिकल 370 हटा या बाकी चीजें हट रही हैं, तो इस तरह से इसमें भी टाइम लगेगा, क्योंकि उसको लाने से पहले सबको इकोनॉमिकली आपको अपलिफ्ट करना पड़ेगा, और इकोनॉमिकली अपलिफ्ट हर कोई नहीं हो सकता। आज भी जो रिजर्वेशन मिला है, उस तबके के कुछ ही % लोग उसका फायदा उठाते हैं, क्योंकि जो अमीर है वो अमीर पे अमीर होता जा रहा है, और जो गरीब है वो गरीबी है। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ, रिमूव नहीं हुआ है, वो वैसे का वैसे ही है। और उसके बाद जो अपलिफ्ट हो गया है, उसके बाद वो रिजर्वेशन का भी अभी भी फायदा उठाता है, जबकि उसको डिफरेंट कल्चर क्या होता है? डिफरेंट कल्चर बताइए। जो अमीर हो गए, डिफरेंट कल्चर, हाँ बता रहे, डिफरेंट कल्चर सुनिए बता रहे हैं। हाँ, शिवांगी सिंह बता रहे, सबका याद रखिए। सर तो जो अमीर है वो इन जो सर दे रहे हैं, सरकार दे रही है अनाज, उसका दुरुपयोग हो रहा है। देखिए, अभी तो मैंने कहा कि अभी लॉकडाउन का प्रोसेस चल रहा है, तो इसमें गरीब अमीर वाला तो पैटर्न ही हट गया है, क्योंकि मान लीजिए कि जो अमीर भी है, अब उसकी जॉब चली गई, उसकी कंपनी बंद हो गई, अमीरी था, तो 5 से 5-6 महीने बैठ के खाएगा। सो गवर्नमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग इन दिस पैंडेमिक फ्री। देखिए, महीने में 2 बार अनाज आ रहा है, एक बार पैसे वाला और एक बार फ्री वाला, और 6 महीने तक गवर्नमेंट को इसको बांटना है, नवंबर तक, और ये कब तक बांटेगी अभी क्लियर नहीं है। ठीक है। ओके सर, मैं समझ गई। सॉरी, सर सरकारी और प्राइवेट में क्या अंतर है? पूछ लिए पहले ये पैटर्न था। लेसन, ये सरकारी और प्राइवेट में क्या अंतर है? सरकारी जानते हैं, गवर्नमेंट की चीज सरकारी है, जो गवर्नमेंट, जैसे पेट्रोलियम है, LPG सिलेंडर आता है, पुलिस स्टेशन है, सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है, यही है। और प्राइवेट का मतलब कि जो आप ये प्राइवेट को खुद लोग चलाते हैं अपने पैसे से, वो प्राइवेट है। सर प्राइवेट में सर अपनी मनी ज्यादा खर्च करनी पड़ती है। हाँ, अपनी मनी तो प्राइवेट में अपनी ही मनी लगती है, और गवर्नमेंट में गवर्नमेंट उसमें मनी को लगाती है, दुगना करती है सर। यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब किसी ने पूछा है कल्चर, डिफरेंट कल्चर का मतलब रीति रिवाज। अब रीति रिवाज है, बहुत सारे रीति रिवाज है। भारत एक बहुत बड़ा डाइवर्स कंट्री है, यहाँ
यहाँ हर कोस कोस पर पानी और पानी का स्वाद बदल जाता है। मतलब कि आप जब जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो लैंग्वेज चेंज होने लगती है, फूड हैबिट चेंज होती है। साउथ में अलग फूड हैबिट है, नॉर्थ में अलग है, नॉर्थ ईस्ट में अलग है, नॉर्थ वेस्ट में अलग है, ठीक है। तो इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, और डाइवर्स कंट्री के साथ साथ जैसे फॉर एग्जांपल हिंदू इज वर्शिपिंग फ्रॉम द ईस्ट साइड, कि सुबह उठकर हिंदू लोग जो है कि पूरब की तरफ मुंह करके वहीं पर मुस्लिम जो है पश्चिम की तरफ मुंह करके पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, ठीक है। सच में कल आप रिवर्स बता रहे थे, वो बता दीजिए। क्या चीज? सर कल आप बता रहे थे कि सर बोलने आवाज क्लियर नहीं है। सर कल आप रिवर्स की बता दीजिए ना। एक मिनट, क्या कह रहे हैं? कल आप सर कल आप रिवर्स बता दीजिए। बेटा सॉरी, साउंड क्लियर नहीं हो पा रहा है, मैं सुन नहीं पा रहा। बाकी किसी को कोई डाउट? आरक्षण क्या होता है? अगर साउंड मेरे तक नहीं आ रही है तो आप अपना कोई बीच में पूछ सकते हैं, जब आप साउंड क्लियर हो जाएगी तो। बाकी क्लियर है? डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातंत्र, लोकतंत्र भाई, हम बार बार बताए हैं, प्रजातंत्र लोकतंत्र, जहाँ पर प्रजा खुद अपने प्रतिनिधि को चुनती है वोट देकर। द डेमोक्रेटिक इज अ थिंग वेयर द गवर्नमेंट हिमसेल्फ what आवाज अच्छा से नहीं आ रहा, by the mode of election, आवाज कट रही है। ठीक है। सर आवाज कोई नहीं आ रहा है। सर ये जो आप लोग लिंक भेजते हैं जीमेल पे नहीं आ सकता है। आवाज कट रही है। सर सर आरक्षण क्या होता है? आरक्षण ही रिजर्वेशन है भाई, आरक्षण ही रिजर्वेशन है और रिजर्वेशन ही आरक्षण है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स? ओपन करने में बात नहीं, लेकिन ओपन करने में अगल बगल से इतनी आवाज आती है कि हमें दिक्कत हो रही है। स्टूडेंट्स यस और कुछ पूछना है? वैसे हम बता चुके हैं, इसमें कुछ है नहीं। और बच्चों को पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ नहीं पूछना है। नहीं आपको नहीं, जिसको नहीं पूछना है एकदम अपना वो सुनेगा बस। और बच्चे? तो सर कुछ नहीं पूछना है। सॉरी सर बोलिए। सर ये जो आप लोग लिंक भेजते हैं जीमेल पे नहीं आ सकता है। आ तो रहा है आपके पास, लिंक आ रहा है ना? नहीं सर जीमेल पे चाहिए। बेटे अब एक के लिए हमको पूरा चेंज करना पड़ेगा, सेट सिस्टम से चेंज करना पड़ेगा ना। हेलो और कोच, मैं आगे बढ़ूं? चलिए यस पॉइंट समझाते हैं इसमें, ध्यान से देखिए। तो ये जो है आपका रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, मतलब गवर्नमेंट किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट जो बीच बीच में जो झगड़े या दंगे फसाद होते हैं किस तरह इसको रिमूव करती है, ठीक है। तो अब अगर हम उसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ इट, इफ वी सी दिस, the government always try to resolve the conflicts, whether it's a sentimental violence or religious violence or whatever it. So please stop this. The rivers too can become, right now there is a difference or is a conflict between the two states on the matter of river. On the matter of river there is a difference
or there is a conflict between two states, and the two states are Tamil Nadu and Kerala. no, Tamil Nadu and Karnataka. And the name of the river is, in our books, the spelling is like Kaveri. Sir, Kaveri. It can also be written in that way, Kaveri. और बीच So don't confuse with the spellings. The spelling doesn't matter. The matter is that you know the name of that specific river. So on that same river, both states make the dam. They also make the dam. And this state also make the dam. So one, you know, the pattern of the river means where, from which pattern the river is flowing. The river always flowing from upward to downward way. Upward से हमेशा downward way में flow करती है. तो ये आपका जो है, देखिए the कावेरी सर तमिलनाडु में कावेरी है. ये देखिए ऐसा है कि ये है रिवर. एक मिनट ध्यान से सुनिए. कावेरी रिवर है. आपको पता होना चाहिए कि कोई एक रिवर, कोई भी एक रिवर कितने भी स्टेट से होकर फ्लो कर सकती है. कर सकती है? कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कर सकती है ना. तो इस तरह से ये कावेरी रिवर 2 स्टेट में फ्लो करती है. तो आपको मैंने सिंपल सा पैटर्न बताया कि जो उसका जो मूवमेंट होगा, जो उसका कोर्स का रिवर का जो मूवमेंट है, वो हमेशा किसी भी रिवर का अपवर्ड टू डाउनवर्ड होता है. ठीक है? अपवर्ड टू डाउनवर्ड होता है. तो इसमें जो अपवर्ड और डाउनवर्ड है, तो जब रिवर फ्लो करती है, तो रिवर जब फ्लो करती है, तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटक एंड तमिलनाडु, द वाटर स्टोर्ड इन कृष्णा नगर डैम. जो कृष्णा नगर डैम है, कर्नाटका, पहले इसको लिखते हैं, और तमिलनाडु कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर वे में लिख देते हैं. देखिए, तो ये जो कर्नाटका रिवर है, सॉरी कर्नाटका जो स्टेट है, तो कर्नाटका स्टेट पर चेंज किए हैं. चेंज कुछ नहीं किए हैं. अब हम इसलिए इसको किए हैं क्योंकि जब हम अपवर्ड और डाउनवर्ड जो बता रहे हैं, तो मान के चले कि यहाँ से इधर की तरह ऐसे फ्लो करती है, इसलिए उसको कर दिए, प्रॉपर क्लियर आएगा. कर्नाटका प्लेस स्टेट में एक डैम है. जो डैम है वो कृष्णा नगर डैम है. ठीक है? अरे नहीं, म्यूट था. म्यूट मतलब आवाज नहीं जाती है. कृष्णा नगर डैम आवाज आ रही है मेरे पास, बातें नहीं. कृष्णा नगर डैम देखिए, तो कृष्णा नगर डैम पर कर्नाटका जो कर्नाटका स्टेट है, उसमें कृष्णा नगर डैम बनाया गया है. और वो कृष्णा नगर डैम किस पर है? कावेरी रिवर पर है. ठीक है? और आगे जाकर यही जो है, so the water stored in कृष्णा नगर डैम इन कर्नाटक. तो यहाँ पर जो ये वाटर है, जो कर्नाटका स्टेट यूज करता है, जो कृष्णा नगर डैम पे बनाया गया है, तो उसको इरिगेशन की फॉर्म में यूज करता है. इरिगेशन समझते हैं कि नहीं समझते हैं? सर समझते हैं. क्या है इरिगेशन? सिंचाई के रूप में खेती बाड़ी में भी यूज होता है. ठीक है? फिर और ये कर्नाटका के नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में ये पानी को फ्लो किया जाता है. क्योंकि मैंने कल बताया था, क्या बताया था आपको, कि रिवर का जो सिस्टम है, रिवर 2 तरह की है. ठीक है? रिवर 2 तरह की जो भी है, एक जो नॉर्थ साइड में फ्लो करती है वो है पेरेनियल रिवर, और दूसरी है सीजनल रिवर. तो सीजनल रिवर जो है साउथ की तरफ ज्यादा फ्लो करती है, और हम साउथ की बात कर रहे हैं. तो सीजनल रिवर्स में पानी बहुत कम होता है, एज वेल एज इन द पीरियड ऑफ
monsoon, Yes, sir. these rivers are getting more water. So in the period of the we can say rainy season, these states try to conserve this water. इसलिए आप सर वहां तो पे मानसून में सीजनल में ज्यादा पानी भर जाता है। नहीं, वो तो भरेगा ही, क्योंकि देखिए सिंपल सा ही, अपने आसपास अगर आप पॉन्ड देखते हैं कहीं, तो आपको गर्मी में ज्यादा भरे हुए दिखते हैं कि बारिश में? बारिश में। बारिश में। यस, ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसका आंसर आप सभी ने दिया। तो इसी तरह से सेम चीज वहां पर भी अप्लाई है। यहाँ तक कि जो राजस्थान के इलाके में जहाँ बिल्कुल पानी ही नहीं है, प्रॉब्लम, लेकिन अभी आप देख रहे हैं न्यूज की जयपुर में बाढ़ आ गई है। Why it comes? So due to too much heavy rainfall, the condition is going to be reversed. बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो कहीं कहीं तो रिवर पता ही नहीं चलता है राजस्थान की तरफ, तो बारिश में पता चलता है तो नदी है, सूख जाती है। तो सेम चीज ये जो मैं बता रहा आपको, ठीक है? तो ये पैटर्न है। तो ये रेनी सीजन में, तो ये कृष्णानगर जो कर्नाटका में है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को पानी मिलता है। कृष्णानगर डैम पे ये बना हुआ है। सर बोलिए सर, कृष्णा राजा सागर डैम है ना कर्नाटका में? अब ये कृष्णा